प्रिय भाई और बहनों, आप सबों का हम आज के बाइबल अध्ययन में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज द्वितीय रविवार है जबकि हम दानियल की पुस्तक में आगे अध्ययन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी वेलकम यू ड्यूरिंग दिस second Sunday of Bible study, and I'd like to welcome all of you in the name of the Lord Jesus Christ. And we praise the Lord for giving us this new opportunity to study His Word. I've been watching them. There are a lot of Bible studies going on, and I have said already that you are free to watch any Bible study, because the Word of God need to be respected and need to be heard with positive attitude and composed mind, so that our life is blessed by the Word of God. And I, as your pastor, am very, very happy that nowadays, as we are in the lockdown or post-lockdown period, now things are opening up, but every day, mostly every day, you are watching various Bible studies being taken by various people, the servant of the Lord, and let it continue so that you are blessed. Your life is really blessed. In our series of this Bible study, the book of Daniel, today we study the 5th chapter. And again, there is a tremendous lesson here as now we read about the life of a little bit of King Belshazzar, the son of great Nebuchadnezzar. And we will see certain things which are very, very important here. Dear friends, we know that this study are being prepared for all of you and all of us, and I anticipate our undivided attention towards this. मित्रों, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर का जो उसने दिया आज हमें, और आज फिर से एक बार हम दानियल की पुस्तक के अध्ययन पर ध्यान देंगे। और मैं चाहूँगा आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे एज वी स्टार्ट दिस बाइबल स्टडी। Heavenly Father, we want to thank and praise you for this book of Daniel, a great prophetic book, the Bible, Lord, and one of the major prophets of this book of prophecy. We thank you, Lord Jesus. And this evening, as we study this chapter 5 of Daniel, we pray, God, that speak to us, and let the message of this book and this chapter be a real part of our life for our preparation and for our life of holiness and life of detachment in this world, so that people know that we belong to you, Lord. We belong to you. प्रभु, हम धन्यवाद देते इस पत्री के लिए, इस बड़े पुस्तक के लिए प्रभु, जो हमारे बाइबल में पाया जाता है, एक बड़े नबियों की पुस्तकों में से डैनियल। और हम जानते प्रभु कि इस व्यक्ति ने न केवल अपने समय में बंधुआई में सेवा करी, लेकिन उसका जीवन एक अनुकरणीय जीवन रहा। और आज इस अध्ययन में प्रभु हम एक उस घटना को देखेंगे जब प्रभु न्याय किया गया प्रभु। और हम इस बात को जानते हैं कि आपका न्याय जल्द प्रकट होने वाला है, और इसलिए आप हमें ऐसे जीवन दे प्रभु कि हम आपके डर और भय में जीवन व्यतीत कर सकें। आज के अध्ययन पर आपके आशीष हो, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, in the history we read about King Belshazzar, the son of great Nebuchadnezzar, and the golden head. And we read a lot of things about this king here, but later on we also see that he was assassinated, he was killed, and there was another dynasty that came in and started ruling. Chapter 5, verse 1 and above. बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। King Belshazzar made a great feast for 1,000 of his lords and drank wine in front of the 1,000. Now, those days it was a custom that whenever they had some celebration, they invited, the king invited, the emperor invited many people from his whole empire. And here we see that there was a great party being arranged. That was good. Having party is not bad. To celebrate something is not bad. And but it was a beginning of something which
later ruined his complete life. That is very, very bad. To have some good time is very, very good, so that we have fellowship, and it was a royal fellowship. ये एक ऐसी संगति हम देखते हैं, ऐसा भोज देखते हैं जहाँ राजा बेलशस्सर ने अपने तमाम 1000 लोगों को बुलाए, जो अधिकारी थे, अपने राज्य के अलग अलग स्थानों से बुलाया उसने। और ये अच्छी बात है कि हम जमा होते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं, भोजन, अच्छे भोजन की तैयारी होती है। और एक दिन के लिए, उन दिनों कई दिनों के होते थे और इसलिए ये बात अच्छी। लेकिन जो इसका परिणाम हुआ, वहाँ हम बहुत ही दुखित होंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं। दूसरी बात लिखा है यहाँ पर, दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाल ले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और वकीलों समेत उनमें पिए। Now the sad thing was that up to this point also it is good that he had started this celebration of the days are not mentioned here, but definitely not for one night, maybe for several nights, several days. Belshazzar, when he tasted the wine, commanded that the vessels of the gold and the silver that Nebuchadnezzar his father had taken out of the temple in Jerusalem be brought, that the king and the lords, his wives and his concubines might drink from them. That was a bad decision. वो एक ऐसा निर्णय था जिसके वजह से इसके जीवन के अंदर परेशानी आने वाली थी। मित्रों, इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर ने ये होने दिया था कि यरूशलेम की तबाही हो, सजा के रूप में, जो BC 585-86 के अंदर घटना घटित हुई कि नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और वहाँ के तमाम बातों को उसने दंडित करा। और वहाँ के जो पात्र थे, सोने चांदी के पात्र, यरूशलेम के मंदिर में जो पवित्र किए गए थे, उनको उसने बंधुआई में लूट के रूप में वो अपने साथ लेकर के बेबीलोन चला गया। और हमने देखा कि किस प्रकार से और भी लोग, जो गुनी लोग थे, उनको उसने बंधुआई में ले गया। दानिएल उसमें से एक था। लेकिन जो गलत निर्णय था यहाँ पर वो ये था कि जो पात्र पवित्र किए गए हैं, पवित्र भवन में रखे गए हैं, उसको राजा बेलशस्सर ने मंगाया, जो उसका सबसे गलत निर्णय था। और इंसान अपने जीवन में जब अपने आप में नहीं होता है तो गलत निर्णय लेता। यानी कहा कि जब वो शराब पीने लगा, तो शराब या दाखमधु पीते पीते जब वो मतवाला हो गया, तो उसने उस कार्य को करने का निर्णय लिया। शायद उसने बखान करा होगा अपने लोगों के सामने कि आप लोगों को पता है, उसके जो 1000 जो प्रधान थे, कि मेरे पिता ने एक चढ़ाई करी थी और यहूदा की, और वहाँ पर जो पवित्र मंदिर है, वहाँ के पात्र भी वो लेके आया। और शायद ये बात हुई होगी कि अच्छा, हमें प्रमाण दिया जाए, तब उसने उनको लाने की आज्ञा दिया। कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जो निर्णय था वो गलत निर्णय था। मित्रों, यहाँ जो शिक्षा हम पाते हैं कि जो परमेश्वर के लिए पवित्र की गई चीज़ें हैं, उनको हमें पवित्र ही रखने की आवश्यकता। उनका इस्तेमाल किसी ऐसे गलत काम में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये पवित्र जगह है, इसकी पवित्रता हमें बनाए रखने की आवश्यकता। और जब हम इस पवित्रता में अगर कोई कोताही बरतते हैं, इसमें कमी आने देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। और कई बार ऐसा देखने में आया है कि उन स्थानों को जिसे हमें पवित्र रखने की आवश्यकता है, हम इतना पवित्र नहीं मानते और हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। परमेश्वर देखता कि हम जब उसके भवन में आते हैं तो कैसे चलते फिरते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, और वहाँ क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। कई दिनों में तो सोने चांदी के बर्तन अब तो रहे नहीं,
लेकिन बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए जब हम उसके मंदिर में उसकी आराधना करने आते हैं तो हमारे जीवन की अवस्था क्या होती है? क्या सचमुच में हम परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? और जब तक वहाँ हम रहते हैं इस बात की हमें चिंता होती है कि हम कहाँ पर हैं। हमें याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। इसलिए जो परमेश्वर के भवन की बातें हैं, चाहे वह आराधना के बारे में हो, चाहे वहाँ पर रखे वस्तुओं के बारे में जिनको पवित्र किया गया है, या कोई और वस्तु, हम खास करके प्रभु भोज लेते हैं जब हम चर्च में आते हैं हफ्ते महीने में एक बार, तो क्या हम उसके लिए पूरी पवित्रता बरतते हैं? जब हम प्रभु भोज के लेने आते हैं, क्या हमारे जीवन के अंदर प्रभु के लिए डर भय होता है? कभी कभी देखा गया कि कुछ लोग जूते पहन के आ जाते हैं, कभी कभी देखा गया कि कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं बिना तैयारी के। इसलिए उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि इसके बारे में संत पौलुस ने पहले कुरिन्थी के 11 अध्याय के 23 पद से लिखा है कि जब हम प्रभु के मेज में आते हैं तो अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, ताकि हमारे जीवन के अंदर पवित्रता पाई जाए, हमारे जीवन के अंदर शुद्धता पाई जाए, ताकि लोग प्रभु को जाने, उसकी महिमा कर सकें। और उसकी जब हम मेज के सामने आते हैं तो अपने आप को जांचें और तब प्रभु के मेज में शिरकत हासिल करें, भाग लें। डियर फ्रेंड्स, one of the things that I'm narrating here is Holy Communion, which we take when we come near to its altar and kneel down and take. We need to understand that we are in a holy place and God sees everything. He watches everything of our all conduct. And the Bible says, St. Paul says in 1 Corinthians chapter 11:23 onwards, that when you come to Lord's table, for the Lord's table, for the Holy Communion, we need to self-examine ourselves, so that our coming here is completely as per the Word of God and for His purpose. The great thing that the thing that I want to narrate here is not about the Holy Communion, but our understanding of God's house and the holiness of God's house. Do we observe everything as per the Word of God? And it is not merely outward appearance, outward thing that we need to observe, but inward thing. When we come to God's house for worship, for any prayer meeting, do we understand that we need to observe His words? Even our dress also is important. It's very, very important. When you come to worship the Lord, we need to be properly dressed and come, and our everything is watched by the Lord. Maybe pastor, because of some time when the great crowd, pastor may not watch everyone, but God is there. His eyes watches over us. The same thing happened here. When this king Belshazzar was drinking wine with his officers, his concubines, his wives, and he got drunk, and then he ordered all the vessels, some of the vessels that was there, taken by his father from Jerusalem temple, they brought, and when it was brought, he started drinking wine in those holy vessels. This is a tremendous mistake that he committed. तीसरी बात यह लिखा है, तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाखमधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति ही कर रहे थे। Now the second mistake. Not only they started drinking on those holy vessels of gold and silver that was brought from Jerusalem. दूसरी जो गलती इन्होंने करी कि ना केवल उन पात्रों पर उन्होंने दाखमधु पिया जो पवित्र पात्र थे, लेकिन यहाँ जो दूसरी गलती हम पाते हैं वो ये है कि उन्होंने दाखमधु पी करके जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे,
काठ और पत्थर के देवतागण थे उनकी स्तुति करने लगे। परमेश्वर ने इन बातों की मनाही करी है। यहाँ ये बात संदर्भ की है, हमें समझने की आवश्यकता कि ये लोग अन्य जाति के लोग थे, वो यहूदी लोग नहीं थे। इसलिए परमेश्वर जैसे बाकी अन्य जातियों के देखता है, उनके साथ बर्ताव करता है, लेकिन जब इन्होंने अपना संबंध जोड़ा उन पवित्र पात्रों के साथ, अब पीते पूते अपने हाथ में लेते हुए जब वो अपने उन बनाए हुए देवताओं की उपासना करने लगे, जो परमेश्वर के सामने, जीवित ईश्वर के सामने घृणित बात है, तो दूसरी गलती के रूप में सामने आई। डियर फ्रेंड, वी रीड हियर वेरी क्लियरली verse 4. They drank wine and praised the gods of gold and silver, bronze, iron, wood and stone. The second mistake, holding those holy vessels, and while drinking wine in those pots or vessels, they started praising God, they started praising their idols, their gods and goddesses. That was an act of abomination. वो एक घृणित कार्य था। और यहाँ पर इस वचन को जब पढ़ रहा हूँ, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, तो ये मेरे सामने एक दूसरी गलती के रूप में आया जो बेलशस्सर के जीवन में आया। तो दो गलती यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहली गलती, शराब पी कर जब मतवाले हो गए तो परमेश्वर के पवित्र भवन के बर्तन मंगवाए गए जो सोने और चांदी के थे। और दूसरी गलती, उनको हाथ में लिए उन्होंने उन देवताओं की उपासना शुरू कर दी जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए थे। और यहाँ लिखा कि वो देवता, देवीगण सोने के थे, चांदी के थे, पीतल के थे, लोहे, काठ और पत्थर के थे। ये दूसरी गलती जो उन्होंने करी और इसकी सजा परमेश्वर ने उनको दी। चौथी बात यहाँ लिखा है कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर की जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। नाउ immediate punishment was there, immediate punishment, and the punishment was written on the wall. We read it here now. Fourth thing, immediately the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall of the king's palace opposite the lampstand, and the king saw the hand as it wrote. Then the king's color changed, and his thoughts alarmed him. His limbs gave away, and his knees knocked together. अब यहाँ पर एक ऐसी घटना को हम देखते हैं जो वास्तव में एक डरावनी घटना। राजा अब कांपने लगा, क्योंकि तुरंत वहाँ कुछ लिखा जाना, उसने अपनी दीवार में देखा, सामने जो दीवार थी लैम्पस्टैंड के सामने, और वहाँ पर कुछ एक हाथ प्रकट हुआ, हाथ यहाँ से आगे, और कुछ लिखने लगा। परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया जाना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर की ठट्टा ना करें, इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इब्रानियों के 12 अध्याय के अंतिम पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। और हम पढ़ते हैं उसकी महिमा के बारे में, थोड़ी सी झलक हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक के 6वें अध्याय के 1 से 8 पद में। वहाँ लिखा है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने परम प्रधान परमेश्वर को, वो दर्शन था यशायाह के लिए, कि ऊंचे पर विराजमान देखा, और उसके तेज से, उसकी महिमा से सारा वातावरण परिपूर्ण था। और वहाँ पर पवित्र प्राणी दिखाई दिए जिनके लिए लिखा गया है कि वो करूब थे, साराप थे, जो दिखाई दिए, जिनके 6 पंख थे।
2 से उन्होंने अपनी आंखों को ढांप रखा था, 2 से उड़ रहे थे और 2 हाथों 2 पंखों से अपने पैरों को ढांप रखा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी पवित्रता इतनी महान है कि ये स्वर्गदूत जो वहाँ रहते हैं उनका निवास ही स्वर्ग में है। ईश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द वो रहते हैं, हमेशा रहते हैं। परमेश्वर ने उनको उसके लिए बनाया। और यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि उसकी पवित्रता को वो स्वर्गदूत भी निहार नहीं सकते, इतना पवित्र परमेश्वर। दूसरी बात, उनके पैर ढके हुए थे, वो पवित्र जगह है। और वहाँ पर जो उनका गीत था, लिखा है पुकार पुकार के उड़ रहे थे और पुकार पुकार के कह रहे थे, पवित्र 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 सेना का यहोवा पवित्र है। तो उसकी वो पवित्रता। और बाइबल के अंदर इस बात को स्पष्ट करा गया है। अगर आप महान 10 आज्ञाओं को देखें तो सबसे पहली आज्ञा यह है कि सुन इस्राएल, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तो मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना और ना मेरे लिए कोई मूर्ति खोद के बनाना। परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। और इसलिए जब कलीसिया के अंदर जेरूशलेम काउंसिल हुई तो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि भाइयों, जो अन्य जाति से आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और तुम लोग हो, इस बात को याद रखना कि तुम मूर्ति पूजा से अलग रहना, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता और वो नहीं देगा। इसलिए जो उसकी महिमा से खिलवाड़ करेगा उसको सजा दी जाएगी। और यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने तुरंत उसने लिखना शुरू करा दीवार में, और उस हाथ को देख करके बेलशस्सर डर गया, उसका नशा उतर गया और परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मित्रों, जीवन में हम याद करें कि जब हम परमेश्वर के निर्णयों के खिलाफ जाते हैं और उनके जो भक्त हैं उनकी बातों का तिरस्कार करते हैं, वो तो आपको कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो उसके भेजे हुए लोग हैं, वो शांत रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर देखता है, और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। इंसान अपने तमाम बातों से छूट सकता है, तमाम उन कार्यों से छूट सकता है जो दुनिया के अंदर करता है, लेकिन अगर वो परमेश्वर के खिलाफ, उसकी महिमा के खिलाफ कदम उठाता है तो परमेश्वर की सजा मिलेगी। हाँ, अगर पश्चाताप करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर नहीं दिया। यहाँ पर बेलशस्सर को मौका नहीं मिला पश्चाताप करने का। आगे हम देखेंगे उसी रात जब मादियों ने उसके राज्य पर हमला करा, उसके बाद दारियुस दारा राजा घोषित किया गया, बेलशस्सर उसी रात मार डाला गया। इंस्टेंट जजमेंट, इंस्टेंट जजमेंट। और इस बात पर हम गौर करें, ध्यान करें कि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मित्रों, कितनी बार हम जो कार्य करते हैं, हमारी सोच जो है स्वार्थ पाया जाता है उसमें, और हम चाहते हैं कि हम उन काम को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है सिस्टमेटिक रूप से तो उसका विरोध करने लग जाते हैं, खासकर परमेश्वर के भवन के बारे में, उसके सेवकाई के बारे में। और याद रखिएगा कि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ होता है, उन लोगों के साथ होता है जो अच्छे कार्य करने के लिए आते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं। ये बताया जाता है कि जब जॉन वेस्ली के दिनों में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के अंदर रिवाइवल आया, तो वे लोग जो कोयला खदानों के मजदूर थे, वे लोग जो गरीब लोग थे, वे लोग जो शराब पीते थे, बाकी कार्य करते थे, उन्होंने उन कामों को छोड़ा। जॉन वेस्ली का विरोध हुआ, कई जगह विरोध हुआ, लेकिन विरोध के बावजूद जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली प्रभु के काम में लगे रहे, और धीमे धीमे करके उन्हीं के जीवन काल के अंदर 50-52 सालों के अंदर एक बड़ी जमात प्रभु के पास आ गई। और ये कहा जाता है कि उनकी संख्या लगभग 52 से 55 हजार की थी जो प्रभु के पास आए। विरोध के बावजूद इन्होंने काम नहीं छोड़ा। और ये होता है कि जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं वो विरोध का सामना करते हैं, खड़े रहते हैं विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के सामने, क्योंकि जानते कि प्रभु ने उनको भेजा है और वो प्रभु के काम को बराबर करते हैं। और यहाँ तक उस समय हो गया कि लोग ठट्ठा करके कहने लगे कि ये जो जॉन वेस्ली और जो चार्ल्स वेस्ली है, ये तो मेथडिस्ट के लोग, ये मेथड वाले हैं, मेथड की बात करते हैं, बाइबल से अलग हट के बात करते हैं, एंग्लिकन चर्च से अलग हट के बात करते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था।
उन्होंने केवल सुसमाचार का प्रचार करा था, लोगों के जीवन के परिवर्तन के लिए, ना केवल बाहर लेकिन जेल के अंदर भी। और एक बड़ा कार्य हुआ, एक बड़ा कार्य। और आज भी ऐसा होता है, जब परिवर्तन आने लगते हैं, जो अस्त व्यवस्था है उसमें सिस्टमेटिक बात आने लगती है, तो लोग विरोध करते हैं। और वो विरोध थोड़े समय का होता है, जब प्रभु के सेवक और सेविका स्थिर रहते हैं, खड़े रहते हैं, ताकि उनको उन बातों की सुधि दिलाया जाए, और धीरे धीरे करके मन में परिवर्तन आने लगता है। लोग उनके पीछे चलने लगते हैं, उनके पीछे नहीं लेकिन प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। और यहाँ पर हम इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, इसलिए भला इसमें है कि हम उसकी महिमा की खोज करें और वो कार्य करें जिससे उसकी महिमा स्तुति हमेशा होती रहे और हमेशा होती रहे। पांचवी बात 7 पद में लिखा है, तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तांत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई उस लेख वह पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, और उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। अब उन दिनों परंपरा थी कि कभी कभी जब राजा खुश होता था तो आधा राज्य उनको दे दिया जाता था। ये उन दिनों में चलती थी। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता था जो राजा के मन के योग्य काम करता था या उन बातों को प्रकट करता था जो राजा चाहता था, तो उनकी प्रतिष्ठा की जाती थी। यहाँ यही बात हुई। राजा ने तुरंत क्या कहा, क्योंकि उसका ज्ञान वहीं तक था कि भाई तांत्रिक को बुलाओ, ज्योतिषियों को बुलाओ। यहाँ लिखा है, उसने कहा, एंड वी रीड हियर वर्स 7, द किंग कॉल्ड लाउडली टू ब्रिंग इन द enchanters, the Chaldeans and astrologers. The king declared to the wise men of Babylon, whosoever reads this writing and shows me its interpretation shall be clothed with purple and have a chain of gold around his neck and shall be the third ruler in the kingdom. तो राजा ने बोल दिया कि वो घबरा गया था, डर गया था। उसने कहा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे राज्य में है, तुम तांत्रिकों में से, तुम जादूगरों में से, तुम भावी कहने वालों में से मेरे पास आए, उनको लाया जाए, सारे उनको लोगों को जमा करा जाए। राजा घबरा गया था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि उसने उस हाथ को देखा था। शायद दूसरों ने उनके हाथ को नहीं देखा, केवल राजा ने देखा था, और उसका नशा उतर गया। वो बहुत बुरी तरह से डर गया। वो जान गया कि कुछ ऐसी बात होने वाली है जिसके लिए हमें बता दिया गया है, और हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि और मैं इस लेखनी के अर्थ को जान लूँ जो लिखा गया है, और परमेश्वर ने उसको बता दिया। मित्रों, आज भी हमारे विश्व के अंदर बहुत सी बातें घटनाओं के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा और बाढ़ और भूकंपों के द्वारा परमेश्वर बताना चाहता है, पर हम मनुष्य प्राणी उन बातों का अर्थ कुछ और निकालते हैं। हम उन्हें रोकना चाहते हैं, हम उससे बचना चाहते हैं, पर क्या यह संभव है? अगर बीमारी हो जो अब चल रही है, कोरोना वायरस, हम बच रहे हैं क्योंकि हम सेफ्टी में चलते हैं, हमने अपना को सुरक्षित करा है, मास्क लगा रहे हैं और डिस्टेंसिंग रखते हैं और खाने पीने के बारे में सावधान है, तो हम बचे हुए हैं। लेकिन अगर जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता, या उनको आने से हम बच नहीं सकते हैं। और ये सारी चीज़ें परमेश्वर के कुछ बातों को हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। एक बात स्पष्ट है कि हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। We need to repent by seeing the calamities, by seeing the disasters in this world, in sea, in mountains and among us. और परमेश्वर उन बातों को द्वारा प्रकट करना चाहता है को क्या करने वाला है। और इसलिए आज आप देखेंगे बहुत सी जगह पर गली गली में प्रार्थनाएं हो रही हैं,
लोग पश्चाताप कर रहे हैं और छाती पीट रहे हैं, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल रहे हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। इस पैंडेमिक के समय जब चारों तरफ हाहाकार है, लाखों लोग खत्म हो गए हैं पिछले 5-6 महीनों में, परमेश्वर कुछ न कुछ बता रहा है, हमें उसकी तरफ आने की आवश्यकता है। उनके इन प्रकृति के और इन तमाम बातों के द्वारा उसकी आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की आवाज़ धीमी है जो हमारे हृदय में आती है, जो हमसे बातचीत करता है। और अगर हम शांत होकर बैठ जाएं, शांत होकर उसके सामने शांत हो जाएं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा और क्या आ जाएगी। मेरी प्रजा के लोग अगर दीन होकर प्रार्थना करें, तब मैं स्वर से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा। ये बाइबल की आवाज़ है जो आई इस्राएलियों के सामने, यहूदियों के सामने, और आज कलीसिया के सामने ये आवाज़ उन कलीसिया के अंदर, हृदय के अंदर आवाज़ है कि कलीसिया प्रभु के लोग हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर से सुनूंगा। इस बात पर हमें गौर करने और ध्यान देने की आवश्यकता। हम आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है पद 8 और 9 में, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। What was the consequences after the hand had written few words on the wall? यहाँ लिखा है, you read here, verse 8 and 9. Then all the king's wise men came in, but they could not read the writing or make known to the king the interpretation. Then King Belshazzar was greatly alarmed or afraid or apprehensive or panic, and his color changed, and his lords were perplexed. अब ये इंसानी अवस्था है। इंसान चाहे कितना भी ऊपर उठना चाहे, कितना भी ऊपर उड़ना चाहे, लेकिन उसके पैर जमीन पे होते हैं। लेकिन अगर वो पैर को जमीन से हटा करके ऊपर उड़ना चाहता है तो नीचे ही गिरता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने ठहराया। लेकिन जब घमंड से वो अपने आप को फूलता हुआ देखता है तो उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाए। और यहाँ पर यही बात होती है, लिखा है कि राजा इतना ज़्यादा घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी उसके साथ व्याकुल हो गए, क्योंकि वो निरुपाय हो गए थे, असहाय हो गए थे। और मित्रों, यही होता है परमेश्वर के न्याय के सामने, परमेश्वर के वचनों के सामने। जो न्याय के वचन है, इंसान निरुत्तर है। ह्यूमन बीइंग बिकम स्पीचलेस, answerless when God start revealing his judgment. And I think today we see this in our midst. हालांकि इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हमने अपने आप को यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर तैयार कर लिया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। डर वहाँ है जहाँ जीवन में परिवर्तन नहीं है। डर वहाँ है जहाँ हम प्रभु की आराधना उसकी इच्छा में नहीं करते। डर वहाँ है जब उसकी इच्छा को पालन नहीं करते। लेकिन अगर हम उसकी इच्छा को मानते हैं, उसकी योजना में चलते हैं और अपने जीवनों को शुद्ध कर लिया है उन 5 कुंवारियों के समान, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं होगी। इन दिनों में हमारे मीडिया के अंदर बहुत से प्रचारक और बहुत से लोग जो भविष्यवाणी करते हैं या जो भी बोलते हैं, उनमें से कई डराने वाले बातें आती हैं और हम डर रहे हैं। सांसारिक रूप से, दुनियावी एतबार से डरने की आवश्यकता है, लेकिन जो प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि ये सारी बातें बाइबल में लिखे हुए के आधार पर हो रही है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये लोग न केवल राजा परंतु उसके साथ प्रधान भी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। ये जो प्रधान लोग, 1000 प्रधान हुआ बैठे थे या उस भोज में या उस सेलिब्रेशन के अंदर भाग ले रहे थे, लिखा है इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गया। सबकी चिंता, जो 1000 उनके प्रधान थे जो अलग अलग राज्य से आए थे, जहाँ जहाँ इनका राज्य साम्राज्य था, वो सारे व्याकुल हो गए कि अब क्या होना क्या होने वाली बातें, क्या हो रहा है। और ये आज भी यही बात हम देखते हैं, आज भी ये बात देखते हैं। तमाम दुनिया के लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा।
ये महामारी जो आ गई, इससे हमारी इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई। हमारे बहुत से जवानों के पास अब जॉब नहीं है, और बहुत से लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके पास उनकी सैलरी आधी हो गई, और बहुत सारी तबाही हो रही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? यहाँ लिखा है कि वो सारे जो प्रधान थे, 1000 प्रधान, वो डर गए, घबरा गए, और वो व्याकुल हो गए। क्या मैसेज है? क्या मैसेज है कि जब इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है, इसके लिए आप भजन 2 अपने घर में पढ़ लीजिएगा, उसमें वहाँ पर उत्तर दिया गया कि वो जो स्वर्ग में है उसका क्या प्रत्युत्तर है, वह लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर की अभिसत्ता को, परमेश्वर के प्रभु सत्ता को हमारे जीवन के अंदर हमें हमेशा याद रखने की आवश्यकता कि वो जो प्रेमी है वो न्याय भी है, और इस बात को हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा पकड़े रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। 6ठी बात हम देखते हैं, 10 पद में लिखा है, राजा प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी। अब यह रानी राजा की माँ, बेलशस्सर की माँ, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। अब रानी आती है और राजा को दिलाता देती है, क्योंकि उसको बताया गया कि राजा घबरा गया है क्योंकि उसने ये काम करा है। ये बुजुर्ग महिला आई राजा के सामने, राजा को सलाम करा और कहा, राजा युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। एक आशा की किरण राजा के सामने उभर आई, माँ के रूप में, रानी के रूप में। और उसने राजा को कहा, अब वो राजा घबरा गया था, उसके सारे प्रधान लोग घबरा गए थे, पर उसकी माँ ने कहा, रानी ने कहा कि तू मत घबरा, मत उदास हो। The queen, because of the words of the king and his lords, came into the banqueting hall. And the queen declared, O king, live forever. Let not your thoughts alarm you or your color change. And that was a word of hope for the entire people who were there, including the king. Because she came with a hope. And what was that hope? क्या उसने बोला? उसने कहा, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतस्सर रखा है। उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा बेलशस्सर, हे राजा बेलशस्सर, तू इस बात को जान ले कि तेरे पिता के दिनों में, तेरे पिता के समय में भी इस व्यक्ति के अंदर क्या पाई गई? उसमें प्रकाश पाया गया। वो ज्योति में चलने वाला व्यक्ति है, वो प्रवीणता उसके अंदर पाई गई और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई उसके अंदर। और अब मैं चाहूंगी कि उसको बुलाया जाए। हे राजा, तेरे पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। He was chosen, he was declared the chief person. यहाँ लिखा है, your father Nebuchadnezzar, your father the king made Daniel chief of the magicians, enchanters, Chaldeans and astrologers. क्यों? क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां सिखाने, खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए कि वह इसका अर्थ बतलाए। Then she said, what she said? Because an excellent spirit, knowledge and understanding to interpret dreams, explain riddles and solve problems were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. This was the ray of hope. ये प्रकाश की किरण थी,
और वो किरण क्या था? प्रभु के दास दानियल के रूप में। और इस राजा बेलसर के माँ ने उसको बता दिया कि अगर इस उधेड़बुन से, इस परिस्थिति से तू उभरना चाहता है तो तुरंत दानियल को यहाँ पर बुला उसको। वो परमेश्वर का भक्त है, उसके अंदर प्रकाश पाया जाता है, वो उसके अंदर प्रवीणता पाई जाती है, उसके अंदर ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई जाती है, उसको बुलाया जाए। और वही स्वप्नों का अर्थ बताने वाला और पहेलियों को खोलने वाला और संदेह दूर करने के लिए उसके अंदर शक्ति पाई जाती, वो परमेश्वर का भक्त है। इवन इन द लैंड वेयर other gods were worshipped, God gave honor to his servant Daniel. अब मित्रों, आज भी ये होता है इस दुनिया के उधेड़बुन में, जहाँ चारों तरफ सारी बातें चल रही हैं, बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी बुराइयां भी हैं, जीवित ईश्वर का अपमान भी हो रहा, लेकिन जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं उनका सम्मान होता है, क्योंकि उनके अंदर प्रभु ने वो प्रवीणता दी है, प्रकाश दी है और दूरदृष्टि दी है कि वो उन बातों को समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला। बहुत से लोग आज भी हमारे बीच में जो बहुत सी बातें कहते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका तिरस्कार नहीं करते और नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा ही अपने लोगों को चिताता है, अपने लोगों के द्वारा ही वो उन बातों का खुलासा करता है, उन बातों का प्रकाशन देता है जो उसने दुनिया के लिए ठहरा रखा। और यहाँ पर लिखा है दानियल को बुलाया गया, या दानियल को बुलाए जाने के बारे में रानी ने आज्ञा दी। मित्रों, इसके आगे हम अगले स्टडी में देखेंगे। परमेश्वर हमको संभाले और हमारे जीवनों को अपने द्वितीय आगमन के लिए तैयार करें, ताकि जो घटना आज हो रही है उनसे हम ना डरें, पर आनंद के साथ अपने आप को तैयार करें, उसके भवन में आनंद के साथ आएं, उसकी आराधना आत्म सच्चाई से करें, जो दुखी और पीड़ित हैं उनकी मदद और सहायता करें, और अपने आप को, अपने जीवन को दुनिया के तमाम बुराइयों से बचाए रखें, ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न हो और उसकी महिमा को हम करने वाले बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो यहाँ पर दिया गया प्रभु, दानियल के पुस्तक के 5वें अध्याय में से। और हमने बहुत सी बातों पर गौर करा, ध्यान दिया। हमारी प्रार्थना प्रभु इन बातों को हम याद करें। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड वी प्रेज यू लॉर्ड फॉर द मैसेज दैट हैज कम टू अस फ्रॉम द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 5। लॉर्ड, वी प्रे दैट prepare our hearts and mind, O Lord, that we may always be reminded that God of Israel, who revealed himself as Jesus Christ, is holy God, and he will not share his glory with anyone. And therefore, Lord, the call of this hour for us is that we need to respect your word, respect your work, respect your people, and walk according to your word, Lord, so that through our lives your name is exalted and glorified. We thank you, Lord, for speaking to us this evening, Lord, from this word of God. As we continue to study your word, Lord, we pray that let the Holy Spirit lead and guide us. प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, और हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप अपने आत्मा का अगुवाई में चलाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we are grateful to the Lord for this Bible study, and this will continue, as I have said already, every month, 2nd and 4th Sunday. And invite your friends also, so that we all participate and study God's word. May God bless you, and let his blessing and benediction be upon you now and forevermore. Amen. Thank you.